is a good and never-ending habit. We should always have this type of habit which shows our awareness towards our society, towards our nation, and that's possible when we are fond of it. Now Kanika will enlighten us with today's news headlines. Good morning to all of you. I am Kanika Chaudhary. Today's news headlines are: first, Chandrayaan-3 cryogenic capsule made an uncontrolled re-entry into Earth's atmosphere and expected to be landed in the North Pacific Ocean. Second, BJP President JP Nadda released the Foreign Manifesto for Rajasthan, promising big incentives for women and farmers. Third, Cyclone Midley is likely to cross the Bangladesh coast and will bring moderate rain to Odisha and West Bengal. Fourth, Israeli airstrikes on residential block in South Gaza killed at least 32 Palestinians on Saturday. Fifth, France's late Emperor Napoleon hat was sold for $2.1 million at an occasion in Paris on Sunday. Thank you and have a nice day. Now it's time to listen to a beautiful poem by Arav. Good morning to all of you. My name is Arav Sharma from class 3rd. Today my topic is poem. I cloud be an astronaut. I would like to go to a plant full of color with flower in the snow. I will then go to Venus. I will then go to Mars. I find a kind of special place somewhere in the stars. A place where fish have feathers. A place where we can walk. That where I land by space and take a walk. Thank you. Have a nice day. Dress of South Korea called. What is the traditional dress of South Korea called? The answer is hanbok. Question 5. Which event marked the official partition of India into two separate nations? This event marked the official partition of India into two separate nations. The answer is Indian Independence Act 1947. Question 6. Who discovered that the planet moved in oval-shaped orbits around the Earth? Around the Sun, sorry. I repeat my question. Who discovered that the planet moved in oval-shaped orbits around the Sun? Repeat please. No. The answer is John Kepler. Thank you and have a great day. For science question, I would like to call a guest. Good morning everyone. Today's science question asked. First, what is the formula of potassium sulfate? I'm repeating the question. Repeat please. Right answer. The answer is K2SO4. Next, what is the atomic mass of copper? And next more question. What is the atomic mass of copper? Wrong answer. The answer is 63.5. Next question. What is the symbol of cobalt? Right answer. The answer is CO. Next question. What is the Latin name of lead? Right answer. Plumbum. सूरज निकला, सुबह हुई है, चिड़िया देखो गा रही है, देर न कर जाना है स्कूल. I love my school, I love my school, I love my school, I love my school. टीचर मेरी कितनी प्यारी, दोस्त मेरे कितने सारे. Oh, it's so cool. I love my school, I love my school, I love my school. सूरज निकला, सुबह हुई है, चिड़िया देखो गा रही है, देर न कर जाना है स्कूल. I love my school, I love my school, I love my school, I love my school. टीचर मेरी कितनी प्यारी, दोस्त मेरे कितने सारे. Oh, it's so cool. I love my school,
मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एक से अधिक कंप्यूटर जब आपस में किसी नेटवर्क मतलब केबल के माध्यम से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, किसके माध्यम से, उनका पर्पस होता है यानी कि उद्देश्य होता है किसका, एक उद्देश्य होता है जो कि होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़ जाते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होगा, एक प्रकार का जाल हो गया। और ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैन होता है, मैन होता है, एक लैन हो गया और एक मैन हो गया और एक हो गया वैन। ठीक है, तो लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और मैन का मतलब हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और वैन का मतलब हो गया क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हो गया 3 प्रकार। कोई भी चीज होगा अपने बिल्डिंग में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए सभी कंप्यूटर को आपस में जब कनेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं लैन। और उसी को अगर अपग्रेड कर दिया जाए यानी कि कंप्लीट एक सिटी की बात कर ले तो एक सिटी में जो नेटवर्क चलेगा मतलब एक इसकी रेंज थोड़ी बड़ी हो जाती है, जैसे इसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि एक्सेप्ट करता है। तो 0 1 हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न की अगर बात करें तो मॉडर्न जो होता है फोन लाइन आकर कनेक्ट होती है। फोन लाइन जो होती है एनालॉग सिग्नल पर वर्क करती है और एनालॉग सिग्नल किसके समझ में, अगर हम ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है। एक प्लेटफॉर्म अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई रिक्वेस्टेड यानी कि जो हमने रिक्वेस्ट की है सूचनाओं को उनको लाकर जो प्रदर्शित करता है उसको हम बोलेंगे सर्च इंजन। ठीक है, जैसे कि गूगल हो गया, याहू हो गया, वेब दुनिया हो गया, लाइकस हो गया, ये सब जो है सर्च इंजन है। ठीक है, बहुत सारे सर्च इंजन है, उनके नाम हम आगे देखेंगे जब आगे के जो है डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर बात कर लेते हैं सर्च इंजन किस चीज को लाएगा, जो सूचना इंटरनेट पर होगी और इंटरनेट पर जो एक नाम आता है महर्षि वाल्मीकि, जो एक डाकू थे और जंगल में उनका काम था कि जो भी उनके पास आए उनको लूटना और मार डालना। एक बार कुछ साधुओं का समूह उस जंगल से गुजरा तो महर्षि वाल्मीकि ने जो उस समय डाकू थे उनको पकड़ लिया और कहा कि जो भी कुछ है हमें दे दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास ज्ञान है वही हम तुम्हें दे सकते हैं और ये जो कार्य करते हो तुम किसके लिए करते हो। तब वाल्मीकि ने कहा कि ये कार्य मैं करता हूँ अपने परिवार का पालन करने के लिए। तो जो तुम ये लोगों को मारते हो क्या इसका जब फल मिलेगा क्या वे उसको भोगेंगे। उसने कहा कि भोगेंगे। एक बार जरा पूछ लेता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि कहीं हमें बहका तो नहीं रहे, तो उन्होंने साधुओं को एक पेड़ से बांध दिया और घर पहुंच गए। अपने माता पिता से पूछा कि मैं लोगों को मारता हूँ, क्या तुम जो सजा मिलेगी उसको भुगतोगे। माता पिता ने कहा कि हम क्यों भुगते, भाई तेरा कर्म है हमारी सेवा करना, जो सजा मिलेगी तू ही भुगतेगा। उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास पहुंची कि जो मैं लूट कर लाता हूँ और तुम्हारा पालन पोषण करता हूँ, सजा मिलेगी तो क्या भुगतोगे। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों भुगते भाई हम तुम्हारी पत्नी हैं तो तुम्हारा काम है हमारा पालन पोषण करना। बच्चों ने भी कह दिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ और आकर पहुंचे साधुओं के पास, उन्हें खोला। उन्होंने कहा कि इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। उन्होंने कहा कि एक नाम है कि जिसको भी तुम मानते हो। उन्होंने राम का नाम दिया। उन्होंने कहा राम तो मैं बोल नहीं सकता, मैंने तो लोगों को मारा है। उन्होंने कहा कि तुम मरा ही बोल देना, वो राम बन जाएगा। उन्हें उद्देश्य मिल गया गुरुओं के द्वारा। एक गुरु के द्वारा उद्देश्य मिला कि तुम्हें राम का स्मरण करना है और उन्होंने राम का स्मरण किया। उद्देश्य मिला, नाम था उनका डाकू रत्नाकर। और अपने शरीर को जब इस भक्ति में लीन हो गए तो उनके शरीर पर छोटे छोटे कीटों ने अपना घर बना लिया था। और जब उन्हें सच्चे ज्ञान का प्रकाश हुआ तब उन्होंने रामायण लिखी। और रामायण लिखकर उन लोगों को ये बताया गया कि जो सच्चे उद्देश्य में चलता है, जिनको सच्चा ज्ञान मिलता है, उनका नाम हो जाता है। जो कर गिरेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो कर गिरेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो
25% ऑफ टोटल परचेज। RFO, GP, तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे एक पजल बेस्ड क्वेश्चन है। पजल बेस्ड क्वेश्चन में आपको वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम दी गई है इसको कैसे फुलफिल करेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कॉर्पो का छोटा वाला फॉर्मूला लगाना है फॉर नोइंग द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, इसे स्मॉल फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, आपको आरएफओ दिया हुआ 3 लाख रुपीस एंड कंडीशन जीपी 25% ऑफ आरएफओ। So 3 lakhs minus 3 lakhs into 25 upon 100. So 3 lakhs minus 75,000 equal to 2 lakh 25,000. आपके पास आ गया कोर्स। अब इसको इस लार्ज फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। लार्ज फॉर्मूला इज कोर्फो इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। इस वैल्यू को पुट करो प्लस जो कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है। So 225 ये भी आप लोगों ने निकाला। ओपनिंग इन्वेंटरी गिवन है आपको 75,000, नेट परचेसिंग आपकी फाइंडिंग है माइनस 50,000 क्लोजिंग इन्वेंटरी। वैल्यू में पुट किया तो यहाँ पर क्या है आपका नेट परचेसेस इक्वल टू 225 प्लस 75,000 इक्वल टू 3 lakhs। 3 lakhs आ गया नेट परचेसिंग। यही आपकी डिमांड थी क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर DPTR इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेसेस। ये तो टोटल परचेज है। टोटल परचेज से एज पर ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं, कैश प्लस क्रेडिट। तो दोनों को मर्ज करके हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाएंगे, टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेसेस प्लस क्रेडिट।